बार्टर सिस्टम जो है तो वो एक इनइफेक्टिव सिस्टम था, ठीक है, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं होते थे, ठीक है, मतलब इसको भी जो चाहिए उसको भी जो चाहिए तभी जाकर एक्सचेंज हो सकता है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाज अ चैलेंज, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ गुड्स, मतलब भाई साहब अगर मुझे यू नो मतलब अगर मैं जूते खरीद रहा हूँ किसी बकरी के एक्सचेंज में, तो भाई साहब ये बकरी गया इधर और जूता गया इधर, लेकिन क्या ये सही एक्सचेंज होगा? नो। So there were many challenges that were there in the barter system which eventually failed. Hence the need was there to commonly have a denominator for all goods and services, and that's how when money evolved. Okay? So evolution and types of money. Following are the types of money which very well explain the evolution of money. Animal money, commodity money, metallic coins, paper money, bank money or credit money, plastic money and electronic money. So these are different types of money that we have. So we will deal with them one by one. What is animal money? In proto-historic period, animal money was used as a medium of exchange. तो animal money को हम use करते थे as a medium of exchange. Proto-historic period मतलब बहुत ही पहले पुरातन जमाने में, ठीक है? As a medium of exchange. Example: animals such as cow, sheep, goat, etc. were used for the purpose of exchange. ठीक है? तो मतलब animals को ज़्यादा करके exchange purposes के लिए use किया जाता था, ठीक है? इसके पास बकरी है, इसके पास गाय है, इसमें तो ये सारे exchanges जो होते थे primarily on animals के होते थे, ठीक है? However, big livestock it was indivisible in nature. लेकिन problem क्या है कि ये indivisible है. किसी animal को काट कर तो नहीं बेच सकते ना, तो मतलब मीट के लिए बेचते हुए तो अलग बात है, लेकिन अगर जैसे मैंने बोला कि आप किसी जूते का सौदा किसी बकरी के साथ कर रहे हैं तो मैच ही नहीं होता है। मैच करने के लिए ये अगर बोलेंगे कि भाई साहब जूते का जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू बकरी चाहिए, तो मतलब बकरी को काटना पड़ेगा, बकरी काट दिया तो खत्म हो गई बात, ठीक है। सो ये लाइफ स्टॉक जो होता है इट वाज इंडिविजिबल इन नेचर। लाइफ स्टॉक मतलब जो जिसको लाइफ है, ठीक है। एज अ रिजल्ट कमोडिटी मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसीलिए भाई साहब कमोडिटी मनी रिप्लेस्ड एनिमल मनी। पहले बहुत बड़े पैमाने पे animals were exchanged in exchange of goods and services. तो animal money पहले prominent हुआ करता था, but because of its disadvantage of being indivisible, it was replaced by commodity money. तो ये commodity money से replace हुआ. As a result, commodity money came into existence. Now, what is commodity money? Due to limitations associated with animal money, people started commodities as money. The commodities used as a medium of exchange in olden days were dependent upon climate conditions and culture. ठीक है? It varied from animal skin, feathers, shells to grains, salt and even rare articles and stones. ये सारी चीजों पे commodity money होती थी due to limitations, ठीक है? तो commodity money इन सारी चीजों पे होती थी। Metallic money evolve हुआ भाई साहब, ठीक है? तो commodity money क्या होती थी? जैसा जैसा भाई साहब आपका grains है, commodity मतलब जो चीजें हम use करते हैं generally. The commodity is used as a medium of exchange in olden days were dependent upon climatic conditions and culture. It varied from animal skin, feathers, shells to grains, salt and even rare articles and stones. ये सारे commodity money में आते हैं भाई साहब, ठीक है? People used durable materials such as gold, silver, copper, aluminum, nickel, etc. as mediums of exchange. Durable मतलब जो strong रहे बहुत दिनों तक, ठीक है? These are basically primarily durable things, ठीक है? However, precious metals were available in scarce quantity. तो जो precious metals हैं जैसे gold हो गया, silver हो गया, ये बहुत कम quantity में available थे. The precious metals were available in very small quantities. ठीक है? तो ये further all pieces of particular metal were not identical or uniform. सब के सब एक तरीके के नहीं थे metals के, ठीक है? कुछ अलग मतलब pieces अलग-अलग हुआ करते थे. Hence it resulted in the creation of metallic coins. तो metallic coins का creation हुआ. In ancient times, rulers of various kingdoms used small metal pieces and affixed their seals on them. जो small metal pieces होता था उसमें ठप्पा मारते थे और seal और ये coin बन गया. Eventually, the monetary system was taken over by the government authorities to give uniformity and legal status to metal coins. तो पहले कैसे होता था कि भाई कोई metallic coin है, उस metallic coin में किसी ruler ने अपना ठप्पा मारा. अभी एक ruler A है, उसके राज्य में उसका ठप्पा चल रहा है. एक रूलर भी है, उसके राज्य में उसका ठप्पा चल रहा है. मतलब अगर आप देखोगे कि इंडिया में ही अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कॉइन्स यूज होते हैं. मुगल साम्राज्य में कुछ और यूज हो रहा है, मराठा साम्राज्य में कुछ और यूज हो रहा है, नवाब के साम्राज्य में कुछ और यूज हो रहा है. अभी प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा यहाँ से वहाँ जाएगा वो क्या यूज करेगा फिर, ठीक है? जैसे आज की तारीख में
आप बोल सकते हो 10 रुपए का जो वैल्यू यहाँ पे वो वैल्यू कर्नाटक में भी है, तो मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि आप स्टेट क्रॉस करेंगे तो 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए टुडे इट इज वेरी मच एक यूनिफॉर्म मनी हो गया हमारा। इन एंशिएंट टाइम्स रूलर्स ऑफ वेरियस किंगडम्स होते थे, उनके रूलर्स होते थे, और ये रूलर्स जो है तो अपने अपने कॉइन्स चला रहे थे, हर एक राज्य में अपना कॉइन है। तो भारतवर्ष में ही काफी सारे राज्य थे और इन हर राज्य में अपना अपना कॉइन होता था, ठीक है। यूज स्मॉल मेटल पीसेस एंड एफिक्स देयर सील्स ऑन देम, इसमें सील रहता था, वो कॉइन होता था, वो करेंसी कॉइन हो गया। लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली द मॉनेटरी सिस्टम वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तो गवर्नमेंट आ गई, भाई साहब डेमोक्रेसी हो गया। तो आज की तारीख में गेव यूनिफॉर्मिटी एंड लीगल स्टेटस टू मेटालिक कॉइन्स। तो लीगल स्टेटस मतलब क्या हो गया, आप देखो मेटालिक कॉइन्स में लीगल स्टेटस होता है, मतलब ये कॉइन जो है, कॉइन्स एक कॉइन्स और रुपये में फर्क क्या है आज की तारीख में, करेंसी है, ठीक है। ये करेंसी की धीरे धीरे वैनिश होने वाली है, मतलब अभी नहीं रहेगा, सारा का सारा ऑनलाइन ही जब चला जाए तो बाय वुड, खैर वो तो एक डिफरेंट डिबेटेबल टॉपिक है। बट व्हाट आई एम आस्किंग इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉइन्स एंड मनी, मतलब करेंसी, नोट और कॉइन्स में फर्क क्या है, ये मत बताना कागज और एक मेटल है, फर्क क्या है। करेंसी विच इज इन द फॉर्म ऑफ पेपर और नोट, इसमें दोनों में फर्क क्या है। कॉइन जो होता है, कॉइन की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, मतलब उतने मेटेलिक पार्ट की जो वैल्यू होती है उतना ही उसका, तो मतलब 1 रुपए में 1 रुपए का ही मेटल यूज हुआ है, 10 रुपए में 10 रुपए का ही मेटल यूज हुआ है। लेकिन एक कागज के पन्ने में जो प्रिंटिंग हुई है वो वैल्यू नहीं है। कहाँ पैसा तुम्हारा 2000 और कहाँ पैसा में कागज का टुकड़ा, क्या वो इक्वल होगा? नहीं। तो कॉइन में और पेपर करेंसी में यही फर्क है। कॉइन में जो वैल्यू कॉइन की होती है, एक्चुअल वैल्यू, मतलब 10 ग्राम का कॉपर यूज हुआ है जो भी, ठीक है, उतना ही उसका वैल्यू रहेगा। इसलिए आप देखोगे मतलब 10 का कॉइन अलग होगा, ठीक है, 5 रुपए का कॉइन अलग होगा, उतना मेटल उसमें यूज हुआ है और उतनी वैल्यू उसकी है, ठीक है। कॉइन्स बेसिकली डिपिक्ट द अमाउंट ऑफ मेटल और द कॉस्ट ऑफ द मेटल विद व्हिच इट इज मेड, ठीक है। लेकिन पेपर करेंसी वैसा नहीं है, पेपर में बस छप्पा मारा हुआ है और वो पेपर अभी करेंसी बन गया है, ठीक है। तो वो जो पेपर है बेसिकली जो आप यूज कर रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो 2 टके का भी नहीं है, लेकिन 2000 का नोट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 10 रुपए का कॉइन है तो उसका मतलब 10 रुपए का मेटल यूज हुआ है उस कॉइन को तैयार करने में, ठीक है, ओके। सो इवेंचुअली द मॉनेटरी सिस्टम वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज गिविंग यूनिफॉर्मिटी एंड लीगल स्टेटस टू मेटेलिक कॉइन्स। यूनिफॉर्मिटी मतलब भारतवर्ष जो राज्य था वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, कहीं पे मुगल साम्राज्य, कहीं पे मराठा साम्राज्य, कहीं पे वैसे बंगाल साम्राज्य। तो अभी भाई साहब यहाँ पे कुछ कॉइन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ कॉइन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी भाई साहब। ये अगर कोई बिजनेसमैन इधर से इधर जा रहा है तो कैसे ट्रेड करेगा, ठीक है। इट वाज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इसीलिए अभी जो गवर्नमेंट आई उसने पूरा भारतवर्ष में, ठीक है, एक यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम रख दिया, तो यूनिफॉर्मिटी आ गई। एंड लीगल स्टेटस टू मेटालिक कॉइन्स, लीगल स्टेटस मतलब दे आर लीगल, मतलब आपके लीगल स्टेटस मिल गया इन सब पैसों को, ठीक है। कॉइन्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। स्टैंडर्ड और फुल बॉडी कॉइन्स, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। ये किस तरीके के कॉइन्स हैं जिनका जो फेस वैल्यू है, मतलब 1 रुपए का अगर कॉइन है तो 1 रुपए का ही मेटल उसमें यूज हुआ है। फेस वैल्यू कितने का हुआ? 1 रुपए का। और इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कितने का मेटल उसमें एक्चुअली यूज हुआ है? 1 रुपए का, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड और फुल बॉडी कॉइन्स। इन दिस केस फेस वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज द सेम एज देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, एज द सेम एज देयर मेटालिक वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा वैसे। टोकन कॉइन्स फेस वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, तो फेस वैल्यू आपका इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। In this case, face value of coins is higher than the intrinsic. This generally happens in case of currency. However, certain coins are also there which are known as token coins, wherein the face value of the coins is more than their intrinsic value, more than the value of the metal which has been used to make them. ठीक है, clear है? So दो तरह के coins हो गए आपके. Paper money, the limitations associated with metallic money give rise to paper money. तो metallic money में क्या limitation है वैसा? अगर मैं face value के coins present कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं भाई साहब 1 रुपए का कॉइन बना रहा हूँ, चलो 1 रुपए का मेटल लगा उसमें, 10 रुपए का कॉइन बनाया, 10 रुपए का मेटल लगा। अगर मेरे को 2000 रुपए का कॉइन बनाना है तो भाई साहब ये बड़ा वसा कॉइन बनेगा, वो 2000 रुपए का मेटल यूज हो रहा है,
इतना मेटल काफ़ी होता है, इसमें मेटालिक लॉस भी होगा, उस मेटल से कुछ और बना सकता था मैं, लेकिन मैंने यहाँ से कॉइन बनाया, चलो फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू वाला कॉइन बनाया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा, वो इतना हैवी होगा कैरी करने में, जो वो इनकन्वीनियंस कॉज करेगा। ठीक है, आप भाई साहब पर्स में कॉइन्स डालो, 100 रुपए के कॉइन्स डालो और पर्स में 100 रुपए का नोट डालो, क्या हल्का रहेगा भाई साहब, ऑब्वियसली नोट। ठीक है, तो ऐसी चीजें हो जाती है। तो पेपर मनी रेफर्स टू द करेंसी नोट्स मेड अप ऑफ पेपर। ठीक है, द लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद मेटालिक मनी, तो मेटालिक मनी में ये सारे लिमिटेशंस थे, इट इज नॉट इजी टू कैरी एंड इट इज इनकन्वीनियंट एट बिगर ट्रांजैक्शंस, जहाँ पे भाई साहब बिगर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप 10-5 रुपए का सामान ला रहे हैं मार्केट से, ठीक है, आप कॉइन लेकर जा सकते हैं। अगर भाई साहब आप 1000 रुपए का कोई सामान खरीद रहे हैं, क्या कॉइन लेकर जाएंगे क्या? एक बैग लेकर उठा जाना पड़ेगा। ठीक है, so it will cause inconvenience. ठीक है, so that's when paper money which is lighter and easier to carry replaced. Paper money refers to the currency notes made up of paper. In India, 1 rupee notes and all coins are issued by the government of India. ये बहुत important है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा ही आपके आंसर्स में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 rupee note and all coins are issued by the government of India. दो लोग हैं जो करेंसी, मतलब there are 2 bodies which print currencies in India. One is Reserve Bank of India and the other one is Government of India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या छापती है भाई साहब? 1 rupee के नोट, 1 रुपये के नोट जो अभी तो चलते नहीं है, एंड ऑल कॉइन्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सारे कॉइन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो 1 रुपये के कॉइन्स और सारे कॉइन्स, ठीक है, 1 रुपये के जो नोट होते हैं और सारे कॉइन्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापेगी। ठीक है, और आरबीआई क्या छापेगा? बाकी सारे। ठीक है, सो इन इंडिया 1 rupee नोट्स एंड ऑल कॉइन्स, ठीक है, आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी कॉइन्स आपके हैं 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, ये सारे जितने भी कॉइन्स हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है। ठीक है, ओके। करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशंस आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो करेंसी नोट्स ऑफ 1 rupee डिनोमिनेशन, आज की तारीख में तो शायद छपता भी नहीं होगा, ये मैंने देखा नहीं है बहुत दिनों से। 1 रुपये का जो करेंसी नोट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, और जितने भी आपके कॉइन्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है। बाकी जितने भी आपके हायर करेंसी नोट्स होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो देयर आर 2 bodies which are associated with printing currency in India. One is Reserve Bank of India and the other one is Government of India. Government of India क्या छापती है भाई साहब? Coins and 1 rupee notes, और बाकी जितने भी नोट्स हैं हायर करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। इन इंडिया करेंसी नोट्स रेंज फ्रॉम 1 to 2000। भाई साहब 1 रुपए का नोट देखा है आपने, 2 रुपए अभी तो नहीं चलता है, 5 रुपए भी हार्डली दिखता है, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, ये सारे डिनोमिनेशंस में आपके नोट्स प्रिंट होते हैं। ठीक है, ओके। बैंक मनी और क्रेडिट मनी, ये किस टाइप का मनी है भाई साहब? बैंक मनी मींस द कैश डिपॉजिटेड बाय द पीपल इन द बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में जो लोग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे भाई साहब बैंक अकाउंट। द मनी डिपॉजिटेड इन करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, तो जो मनी डिपॉजिट हो रहा है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में, उसको हम क्या बोलेंगे? बैंक मनी। ठीक है, बैंक मनी। This money is withdrawable and transferable on demand by means of check, demand draft, etc. आप भाई साहब आज की तारीख में चेक बहुत कम यूज करने लगे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें आपके बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है उससे होता है। ठीक है, ओके। क्रेडिट मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अभी ना व्हाट इज क्रेडिट मनी? क्रेडिट मनी मतलब आपको बैंक्स जो लोन्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। अभी आप समझिए किसी इकोनॉमी में भाई साहब क्या है, लेट्स से एक्सपेंशन होना है। अगर किसी इकोनॉमी का एक्सपेंशन होना है तो वहाँ पे क्या होगा? बिजनेस होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बिजनेस हैज टू बी इनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ हाउ विल द गवर्नमेंट इनकरेज द बिजनेस? तो देखो, बिजनेस डालने के लिए चाहिए पैसा। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज हो सकते हैं, आपका स्किल सेट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग कैपिटल दैट यू वुड नीड। और इस स्टार्टिंग कैपिटल को आप कैसे प्रोक्योर करेंगे? अगर भाई साहब लोन का प्रोक्योर करने का प्रोसेस इजी हो, इफ इट इज इजियर टू प्रोक्योर लोन्स, देन यू विल बी एबल टू टेक दीज लोन्स एंड बेसिकली एक्सपैंड योर बिजनेस। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैपिटल किसी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। एनी बिजनेस टू गेट एस्टैब्लिश्ड विल रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग कैपिटल। वेयर विल यू गेट दिस? जरूरी नहीं कि सबके पास पैसा हो, तो फिर बैंक्स को अप्रोच करेंगे। तो इसीलिए पूरे बैंक्स का सिस्टम जो है वो इस कदर डिजाइन होनी चाहिए कि वो बिजनेस को सपोर्ट करे। ऐसे नहीं किसी भी ने उनसे पैसा मांग लिया तो दे दिया, ऐसा नहीं। एक्चुअल प्रॉपर वेरीफाइड प्लान, बिजनेस प्लान के तहत
अगर आप बैंक्स को अप्रोच करेंगे, they will grant you loans. And it's very important that at the right time loans are given to people so that they can make use of it and generate income for themselves as well as for others. क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का भी होता है, जिससे उनको टैकल करना रहता है, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो कैसे टैकल होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। गवर्नमेंट नहीं करके कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी? आपका वैसा रेलवे का सेक्टर हो गया, लेकिन कितने सेक्टर से कितना खोल पाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेसमैन को इनकरेज करती है बाय मेकिंग द प्रोसेस ऑफ लोन प्रोक्योरिंग ईजियर, देन व्हाट विल हैपन? बिजनेस जो करेगा वो अपने अंडर 10-20 लोगों को रखेगा या 100 लोगों को रखेगा, उनको अपने आप रोजगार मिल जाएगा, उनको अपने आप एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। सो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज controlling the employment rates, ठीक है। Although government is not able to provide jobs to everyone, but if it creates business opportunity का environment, then many people will automatically get employed, ठीक है। So इस तरह से आपको गवर्नमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है। So credit money क्या होता है? Credit money is basically the money that is given by various banks and financial institutions to individuals who want to do business and who want to earn money as well, ठीक है। तो ये मनी ऑन क्रेडिट होता है, मतलब उधारी में पैसा होता है। मतलब अगर आपने 100 रुपये उधार लिया है तो आपको 110 रुपये रिटर्न करने देंगे एज पर द इंटरेस्ट रेट्स विच आर एप्लीकेबल ऑफ द क्रेडिट मनी, ठीक है। और इसी से बैंक्स का चलता है वैसा, आपसे इंटरेस्ट में पैसा उन्होंने लिया और वही चीज़ पैसा आगे घुमा, मतलब आपसे फिक्स डिपॉजिट लिया, फिक्स डिपॉजिट पे आपको कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं और आगे आप ही का पैसा वो घुमा रहे हैं लोन्स में और उनसे ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं। तो दैट इज हाउ बैंक्स बेसिकली अर्न, ठीक है, दैट इज हाउ बैंक्स अर्न। बट बैंक्स का एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड एंटरप्रेन्योर्स और इंडिविजुअल्स हु वांट टू डू बिजनेस मनी एट द राइट टाइम इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ओके, सो क्रेडिट मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। प्लास्टिक मनी क्या होता है भाई साहब? प्लास्टिक मनी इज बेसिकली मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा। तो आज की तारीख में भाई साहब मनी कैरी करना एक इनकन्वीनियंस है, राइट। पर्स में कैरी करें चाहे भाई साहब हैंड बैग्स में कैरी करें, वेरेवर। सो टू कैरी मनी इज एन इनकन्वीनियंस। हाउएवर एक कंडेंस फॉर्म में हम प्लास्टिक मनी को कैरी कर सकते हैं। ये प्लास्टिक मनी बेसिकली आपके क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स हो गए, दे आर मच इजियर टू यूज। स्वाइप किया भाई साहब पैसा पे हो गया। प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज इन ट्रांजैक्शंस ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी, सो इट इज इजी टू यूज। द प्लास्टिक मनी हैज कंप्लीटली एलिमिनेटेड द नीड टू कैरी करेंसी नोट्स। अभी हमको करेंसी नोट्स कैरी नहीं करने पड़ेंगे, अभी तो कुछ दिनों बाद आपको प्लास्टिक मनी भी कैरी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन बेसिकली। आप जीपे से, फोन पे से, पता नहीं और क्या क्या ऐप्स हैं, आप पेमेंट्स कर सकते हो वैसे, ठीक है। इट्स बिकमिंग सो इजी टू मेक पेमेंट्स। तो व्हाई वुड यू इवन कैरी अ वॉलेट फर्स्ट इन द फर्स्ट प्लेस? कुछ दिनों बाद वैसा वॉलेट प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। Maybe in 5 years down the line there will be RBI will not be printing any kind of money. तो देश का काफ़ी खर्चा बचेगा भी। आज की तारीख में भाई साहब मेरे यहाँ पे अगर मतलब वो रद्दी वाला भी आता है, न्यूज़पेपर लेकर जाता है, तो वो भी मेरे को पेमेंट ऑनलाइन कर रहा है। तो which means that a person who is not educated also is very much in comfort with making online payments. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत पढ़े लिखे तुरंत खान की जरूरत है in order to do online payments. So एक अशिक्षित वर्ग या अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी इस चीज़ का फायदा उठा रहा है, ठीक है, और उठाना ही चाहिए। तो धीरे धीरे आपका ये प्लास्टिक मनी भी तो हमने देखा मनी के डिफरेंट फॉर्मेट्स, कैसे मनी इवॉल्व हुआ है। पहले लोग वैसा कॉइन्स रखते थे, कॉइन्स एक इनकन्वीनियंस था तो पेपर करेंसी आई, पेपर करेंसी वैसा इनकन्वीनियंस हुआ तो प्लास्टिक मनी आया, प्लास्टिक मनी इनकन्वीनियंट हुआ तो ऑनलाइन पेमेंट्स आया। अभी ये चल रहा है वैसा, ठीक है। सो वन फॉर्मेट इज रिप्लेसिंग द अदर फॉर्मेट, ठीक है, वन फॉर्मेट इज रिप्लेसिंग द अदर फॉर्मेट। द इनोवेशन इन स्मार्ट ट्रांजैक्शंस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ, आज की तारीख में वैसा इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया। आप बैठे बिठाए वैसा पेमेंट्स कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी और ई मनी, it is a monetary value that is stored and transferred electronically to a variety of electronic devices such as mobile phones, tablets, smart cards, computers, etc. तो इन सब चीज़ों से ये ट्रांसफर होता है, ये पैसा वैसे भी ट्रांसफर होता है। तो आपके वैसा फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, जीपे हो गया, देयर आर सो मेनी पेमेंट ऐप्स थ्रू व्हिच यू कैन गेट योर मनी ट्रांसफर, ठीक है। ओके, बैंक ट्रांसफर भी होता है। ई मनी इज बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक वैसा ई मनी को बैक करता है। It uses for purchases and transactions globally. It is used for purchases and transactions globally. E-money कैसा होता है? E-money जैसे अगर समझ लो आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने 50,000 रुपये कैरी किया अपने साथ। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे उस कंट्री में, वो 50,000 रुपये को आपको डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एज पर द डॉलर रेट, ठीक है।
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मनी में ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा चलो इतना दिया इतना है। इलेक्ट्रॉनिक मनी अगर आप किसी फॉरेनर को पे कर रहे हैं इन डॉलर्स, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा, आपके बैंक से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके उतना ही पैसा उसको पेमेंट कर देगा, ठीक है। सो डिजिटल इट इज यूज्ड फॉर परचेजेस एंड ट्रांजैक्शंस ग्लोबली। तो ई करेंसी से आप भाई साहब परचेजेस और ट्रांजैक्शंस ग्लोबली कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो सैलरीज पेड होते हैं, जैसे समझ लो इंडिया में बैठे बहुत सारे कंपनीज फॉरेन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, तो वो फॉरेन कंपनीज इनको कैसे पेमेंट करेगी, वही करेंसी चीज़ होता है, ठीक है। ओके, डिजिटल वॉलेट्स आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मनी। आपके पेटीएम में वॉलेट्स होते हैं देखो, ठीक है, दीज आर वॉलेट्स, मतलब जहाँ पे आपने एक अमाउंट स्टोर करके रख दिया है और उस अमाउंट से अलग अलग जगहों पे पेमेंट्स कर रहे हैं। कुछ ऐसे साइट्स होते हैं या कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जहाँ पे आपको पेमेंट वॉलेट से ही करना रहता है। ये पेटीएम से इन्होंने टाई अप करके रखा है, जैसे पेटीएम वालों ने बोला है कि हमारे को आपको अगर टाई अप करना है तो हम हमारे वॉलेट से ही आपको पैसा जाएगा, तो मतलब कस्टमर के वॉलेट से ही पैसा जाएगा, मतलब पेटीएम वॉलेट। मतलब अभी पेटीएम वॉलेट क्या होगा, कस्टमर वहाँ पे अपना पैसा स्टोर रखेगा, ठीक है, और जब तक पैसा स्टोर रखेगा तब तक पैसे को घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो वैसा है एग्जाम्पल पेटीएम, ओला मनी हो गया है, गूगल पे, फोन पे, ऑल दीज आर many types of apps which are basically designed to use money in an electronic format. So today you don't need to carry coins, today you don't need to carry paper currency, today you don't need to carry even debit or credit cards, ठीक है। all you need to have is your phone, जिससे आप easily transactions कर सकते हैं। legal and non legal tender money, okay, on the basis of acceptability money is classified into two types. Legal tender money, it is the money which is backed by law and cannot be refused in a transaction by anybody on any ground, ठीक है। अगर समझ लो आपको किसी को 2000 रुपए देने, ठीक है, आप 10-10 रुपए के नोट लेकर आए, तो कितने नोट हो जाएंगे, 200, है ना, 200 नोट्स 10-10 रुपए के होंगे, आप उसको दे सकते हैं। वो ये नहीं बोला नहीं मैंने नहीं लेना, ये मैं नहीं लूंगा, इतना कौन लेकर जाएगा, 500 के 4 नोट निकालो या 1-2 हज़ार का नोट दो, नहीं। This is not something that you could do. If you are owing money to a person for any reasons, you can pay that person with any format or denomination of money. आप 2000 के कॉइन से भी उसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। Nobody can deny this. अगर वो डिनाई कर रहा है तो वो इलीगल है, ठीक है। It is the money which is backed by law and cannot be reused in transaction by anybody on any ground. ये भाई साहब बैक्ड बाय लॉ है एंड कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन अ ट्रांजैक्शन, रिफ्यूज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, बाय एनीबॉडी और एनी ग्राउंड। किसी भी कारणवश अगर बोला नहीं इतने कॉइन में लेकर नहीं जाऊंगा, नहीं इतना बड़ा बंडल में लेकर नहीं जाऊंगा, आपका प्रॉब्लम है। आपको 2000 मेरे को देना, मैं 2000 दे रहा हूँ, इसी फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ और इसी फॉर्मेट में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपका भाई साहब लीगल टेंडर मनी होता है, नोबडी कैन डिनाई। मेरे को याद है मैं एक बार मैं आपकी उम्र का था और मैं ट्रेन की टिकट्स बुक करने गया था, तो मैंने चेंज दिया, उसने 10 रुपये 10 या 15 रुपये मेरे को वापस किए, जो कि मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो 10 रुपये में बहुत गंदा सा नोट था, तो मैंने बोला मैं ये नहीं लूँगा। वो बोला वो भाई चुपचाप ले ले, ये अगर फटा हुआ था अलग बात थी, तो मैं ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। मैंने बोला ये क्या बात है, डिनाई तो नहीं कर सकते। बोला भाई ये लीगल मनी है, ये गवर्नमेंट से बैकअप मनी है, यू कैन नॉट डिनाई दिस, तो आप डिनाई नहीं कर सकते, यही बोलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सो ये वाज ऑब्वियसली अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बस अब तो उसको मालूम था। यू कैन नॉट रिफ्यूज अ ट्रांजैक्शन बाय एनीबॉडी ऑन एनी ग्राउंड, इट इज द मनी व्हिच इज बैक्ड बाय लॉ एंड कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन अ ट्रांजैक्शन बाय एनीबॉडी ऑन एनी ग्राउंड्स। इन इंडिया ऑल कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स आर लीगल टेंडर, सारे कॉइन्स और करेंसी नोट्स आपके लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी, it is the money which is generally used by people in final payments but there is no legal compulsion of acceptance, it can be refused, ठीक है। तो ये किस तरीके का नोट है, it is the money which is generally used by people in final payments, फाइनल पेमेंट्स में ये मनी यूज होता है but there is no legal compulsion of acceptance, इसको सामने वाला एक्सेप्ट कर भी सकता है और डिनाई भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे लीगल कंपल्शन है, सामने वाले को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बस आप सामने वाला एक्सेप्ट भी कर सकता है और डिनाई भी कर सकता है, ठीक है। इसको नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी बोलेंगे। चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा आर एग्जांपल फॉर दिस मनी, इट इज नोन एज ऑप्शनल मनी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप अकाउंटेंसी में पढ़ते हो, अगर मैंने आपको बोला मैं आपको चेक से पेमेंट करता हूँ, आप बोल सकते हैं नो आई विल नॉट एक्सेप्ट चेक्स,
मेरी मर्जी, ठीक है, आप डिनाई कर सकते हैं। हो सकता है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया हो या आपका बैंक अकाउंट ऑपरेशन ना हो, चेक कहाँ पे जाएंगे, कहाँ जमा करेंगे, ठीक है। सो मे बी यू आर नॉट टेकिंग चेक्स, और हो सकता है आपको बैंक बहुत दूर पड़ता हो, आपके घर से बहुत दूर है, वो बहुत बड़ा हैसल है, आपसे मैं 1000 रुपये का पेमेंट ले रहा हूँ, मेरा पैसा पेट्रोल ही जाएगा 500 रुपये का, तो कोई मतलब नहीं बनता, तो यू कैन रिफ्यूज दिस, ठीक है, यू कैन रिफ्यूज एक्सेप्टेंस बाय चेक्स, ठीक है, तो दिस इज अप टू यू, बट यू कैन नॉट रिफ्यूज फिजिकल मनी, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में फिजिकल मनी को आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद बार्टर सिस्टम, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इज करेक्ट, ठीक है, ओके, डिविजिबल नेचर ऑफ सर्टेन गुड्स, डिविजिबल नेचर नहीं होता है भाई साहब, ठीक है, ओके, ये भी करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, क्या ये प्रेजेंस होता है या नहीं होता है? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू वही वैल्यू ना भाई साहब, आपके पास दो जूते हैं, इनके पास एक बकरी है, दोनों को एक्सचेंज किया जा रहा है, चलो इनको जूतों की जरूरत है और इनको बकरी की जरूरत है, लेकिन क्या ये एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई साहब, ठीक है, सो लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होगा, ठीक है। डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स होगा भाई साहब, ठीक है, जबरदस्ती का हम गुड्स लेकर आ रहे हैं, आज की तारीख में आप जो गुड्स चाहते हैं वही लेकर आएंगे मार्केट से, जबरदस्ती का उसके पास ये है तो मुझे लेना पड़ेगा, मतलब उसके लिए मेरे को और एक स्टोरेज हाउस करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, सो व्हाट वुड बी द करेक्ट वन? 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 are correct, so the option A 1 and 4 divisible यहाँ पे नॉन डिविजिबल नेचर, सॉरी यहाँ पे नॉन डिविजिबल नेचर ऑफ सर्टेन गुड्स, ये प्रॉब्लम है, डिविजिबल नेचर प्रॉब्लम नहीं है, नॉन डिविजिबल नेचर प्रॉब्लम, ठीक है। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी, मेटालिक मनी, एनिमल मनी, मेटालिक कॉइन्स, कमोडिटी मनी, एवोल्यूशन का क्या हो जाएगा? पहले क्या था? एनिमल मनी, उसके बाद क्या आया भाई साहब? कमोडिटी मनी, उसके बाद आया भाई साहब आपका मेटालिक कॉइन्स, और उसके बाद आया आपका मेटालिक मनी, ठीक है, मेटालिक मनी है, मेटालिक कॉइन्स, हाँ मेटालिक मनी आया भाई साहब कब? जब ये जितने भी राज्य में राजा लोग थे तो दे स्टार्टेड प्रिंटिंग मेटालिक मनी, ठीक है, उसके बाद आया आपका मेटालिक कॉइन्स। अरेंज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी, पहला कौन सा आया था भाई साहब आपका? पेपर मनी, पेपर मनी के बाद प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी के बाद क्रेडिट मनी, नहीं पहले क्रेडिट मनी आएगा ना, ठीक है, सो नहीं ठीक है, पेपर मनी, उसके बाद आया भाई साहब आपका क्रेडिट मनी, ठीक है, देन इट इज प्लास्टिक मनी एंड देन इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मनी, ओके। असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। असर्शन में क्या बोला जा रहा है? कमोडिटी मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनिमल मनी, ठीक है, इंडिविजिबल नेचर ऑफ लाइवस्टॉक क्रिएटेड डिफिकल्टीज इन यूज ऑफ एनिमल मनी, तो उसके जगह पे आया कमोडिटी मनी। एनिमल मनी पहले यूज होता था, लेकिन एनिमल मनी का एक जो प्रॉब्लम है वो है उसको डिवाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है, गुड्स को डिवाइड कर सकते हैं, एनिमल्स को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, सो यस, क्या ये दोनों भी करेक्ट होगा? बोथ असर्शन एंड बोथ एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये दोनों भी करेक्ट हैं और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन एंड रीजनिंग, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके सीबीएसई में असर्शन और रीजनिंग का फॉर्मेट अलग होता है, A2 R2 एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ये आपका पहले में आता है ना, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे देखो सी वाले में वो ऑप्शन रखा हुआ है, both A and R are true and R is the correct explanation of it, तो आपका सीक्वेंस क्या होता है? ये वाला A होता था, ठीक है, A and R are true but R is not the correct explanation, ये B होता था, ठीक है, उसके बाद ये होता था C, उसके बाद होता था D, तो ये थोड़ा सा मतलब है तो वही स्टेटमेंट्स, लेकिन जस्ट अ लिटिल डिफरेंस इन देयर सीक्वेंसिंग, ठीक है, ओके। मेटालिक मनी वाज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय पेपर करेंसी, ठीक है, पेपर करेंसी ने रिप्लेस किया। यूनिफॉर्मिटी इन मेटालिक पीसेस रिजल्टेड इन द नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ मनी, तो ऐसा A तो ट्रू है, और यूनिफॉर्मिटी इन मेटालिक पीसेस मतलब नॉन यूनिफॉर्मिटी इन मेटालिक पीसेस रिजल्टेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ मनी, करेक्ट, यूनिफॉर्मिटी नहीं नॉन यूनिफॉर्मिटी। Complete the following statements by choosing the correct alternative. Problem of making deferred payments is one of the difficulties associated with modern economic barter or bartering. Deferred payments मतलब installment payments, ठीक है। Problem of making deferred payments, ये कौन से भी प्रॉब्लम हो जाएगा वैसा? barter system, ठीक है। Problem of making deferred payments is one of the difficulties associated with barter system. barter system में वैसा एक प्रॉब्लम होगा, आप टुकड़ों में कैसे पेमेंट्स करोगे, ठीक है। Animal skin, grains, stones, etc.
आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मनी? एनिमल, कमोडिटी, बैंक और ब्लैक। कमोडिटी मनी होगा ना, जैसे कमोडिटीज है ना, एनिमल स्किन हो गया, ग्रेन्स, स्टोन्स एक्सेट्रा, दीज आर व्हाट टाइप ऑफ मनी? कमोडिटी मनी। ठीक है, बार्टर सिस्टम में ये चलता था। स्टैंडर्ड कॉइंस आर नोन एज टोकन कॉइंस, फुल बॉडीड कॉइंस, मेटालिक मनी और ब्लैंक मनी। सो दिस इज फुल बॉडीड कॉइंस। स्टैंडर्ड कॉइंस को फुल बॉडीड कॉइंस बोलते हैं, मतलब जिनका फेस वैल्यू उनके इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हो, where the face value is basically equal to the intrinsic value. These are known as full body coins. Complete the following statements by choosing the correct alternative. Token coins are those whose face value is higher than the intrinsic value. Face value आपका higher होगा the intrinsic value से, so that will be token coins. Okay. Digital wallets are a form of dash money. Electronic money, ठीक है? It will be electronic money. Okay. Essential qualities of money. So let's look at essential qualities of money. Okay. Essential qualities of money क्या-क्या हो जाएंगी भाई साहब? Stability होगी money में, general acceptability, divisibility, durability, cognizability, profitability, homogeneity. तो stability भाई साहब क्या हो जाएगा? Money should have a stable monetary value. इसका stable monetary value होना चाहिए. Money has purchasing power. ठीक है? मनी का देखो ऐसा नहीं कि अरे इसका तो रुपीस वैल्यू गिर गया, अभी क्या मैंने अगर पैसा कल मुझे 50 ग्राम पनीर 50 रुपए में मिल रहा था, तो कल को दुकानदार बोलेगा कि नहीं अभी हम 100 रुपए कर देंगे, तो स्टेबल नहीं है वो। ठीक है, तो मनी शुड हैव स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है मॉनेटरी वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए। मनी हैज द परचेसिंग पावर, मनी हमारा परचेसिंग पावर होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो प्रॉब्लम होगा। This purchasing power of money should remain stable over a period of time. तो जैसे आज आपने अपने घर में जो तो बड़े बूढ़ों को बोलते हुए सुना होगा, अरे हमारे रुपए में तो हमारे टाइम में तो भाई साहब 10 किलो चावल 2 रुपए में आता था, ऐसा आप सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये जो उनके ज़माने में 10 किलो चावल 2 रुपए में आता था और आपके ज़माने में जब 10 किलो चावल जैसे 400 रुपए में आ रहा है, तो क्या ये रातों रात हो गया भाई साहब? नहीं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे बढ़ा है। ऐसा नहीं कि कल ही 2 रुपए में 10 किलो चावल आ रहा था आज 400 रुपए हो गया भाई साहब, ऐसा नहीं हुआ है। तो मनी की एक स्टेबिलिटी वैल्यू, एक परचेसिंग पावर है जो इतना जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ठीक है, इट विल फ्लक्चुएट, द पावर ऑफ और द परचेसिंग पावर ऑफ मनी विल फ्लक्चुएट। परचेसिंग पावर क्या है? कितने यूनिट्स एक पर्टिकुलर कमोडिटी के आप खरीद सकते हो, एक गिवन अमाउंट ऑफ मनी। 2 रुपए में एक टाइम पे आप 10 किलो चावल खरीद पाते थे, आप शायद एक दाना भी आज नहीं खरीद पाओगे क्योंकि भाई साहब 40 रुपए हो गया है। ठीक है, 50 रुपए हो गया, तो ये 10 किलो चावल के लिए आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये एकाएक या रातों रात नहीं हो गया भाई साहब, इट हैज टेकन अ लॉन्ग नंबर ऑफ इयर्स फॉर दिस चेंज टू हैपन। ठीक है, बिकॉज द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज मोर और लेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस वेरी ग्रेजुअली, इसमें रैंडम चेंजेस नहीं आते। ठीक है, so this purchasing power of money should remain stable over a period of time. If a person is able to buy 5 kilos of rice for rupees 200 today, then in future also he should be able to buy 5 kilos of the same price of rice for rupees 200. Future मतलब 50 साल बाद नहीं, मतलब आज कल परसों 1 महीना 1 साल कम से कम ये रहना चाहिए। ठीक है, then in future also he should be able to buy 5 kilos of same rice for rupees 200. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन नहीं होगा, हाँ फ्लक्चुएशन होगा, बट इट विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दैट फ्लक्चुएशन और चेंज टू हैपन। ठीक है, ओके। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है भाई साहब? ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड एज मनी मस्ट बी इजीली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय ऑल। सब लोगों को ये एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए। मनी जो है वो सबको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, मतलब फॉर्मेट मतलब पैसों में, चेक्स में, जो भी है मनी, वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, everyone should be able to accept it. There should be no reason to refuse its acceptance for exchange purpose. तो जैसा आपको बोला गया कि वैसा मनी लीगली जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, nobody has the right to basically deny its मतलब अगर आपको पे किया जा रहा है, you cannot deny. ठीक है, आपको लेना ही पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी भाई साहब क्या होती है? डिविजिबिलिटी आपका भाई साहब समझ लो 50 रुपए है, 50 रुपए को आप 10 के करेंसी में 5 नोट दे सकते हैं, या भाई साहब 5 के कॉइन्स आप भाई साहब कितने दे सकते हैं? 10 कॉइन्स दे सकते हैं, या आप 1 रुपए के 50 कॉइन्स भी दे सकते हैं।
तो इट इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो डिविजिबिलिटी, मनी शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस, तो स्मॉलर डिनोमिनेशंस में वो होने चाहिए, ठीक है, दे शुड बी अवेलेबल इन स्मॉलर डिनोमिनेशंस। इंडियन रुपीस इज अवेलेबल इन द डिफरेंट डिनोमिनेशंस, 1 रुपीस, 2 रुपीस, 5 रुपीस, 10 रुपीस, ऐसे सारे डिनोमिनेशंस में भाई साहब आपका है। जैसे 3 रुपीस आपको नहीं मिलेगा, 4 रुपीस आपको नहीं मिलेगा, आप 3 रुपीस कैसे करोगे भाई साहब, 1 1 1 के 3 या 2 and 1 के, ठीक है, ये आपका 3 रुपीस हो गया। 5 रुपीस आपको मिल जाएगा, 6 रुपीस नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे भाई साहब, 2 2 2 के 3 कॉइन या 6 रुपए के, मतलब 1 1 रुपए के 6 कॉइन, ऐसा, ठीक है। सो कुछ डिनोमिनेशंस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो डिनोमिनेशंस आपको नहीं मिल रहे वो इजीली अवेलेबल है कवर अप में। 7 रुपए है भाई साहब, 7 रुपए आपका ना तो कॉइन है ना तो करेंसी है, तो कैसे आप 7 रुपए दोगे किसी को, वैसा 5 + 2 कर सकते हो, 7 रुपए के 1 1 कॉइन दे सकते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। सो स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए इजीली डिविजिबल होना चाहिए आपका मनी। ड्यूरेबिलिटी, मनी शुड नॉट गेट स्पॉइल्ड और डिस्ट्रॉयड इजीली, ठीक है, मतलब भाई साहब आपने आज जेब में रखा और कल मतलब मेरे वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है, कल निकालेंगे तो टुकड़े टुकड़े निकलते हैं पैसा, ऐसा अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, ठीक है। या मैंने आज कॉइन अपने वॉलेट में रखा, कल देने गया तो पूरा जंग खा गया पैसा, ठीक है, तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो क्यों एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो इट शुड नॉट गेट स्पॉइल्ड और डिस्ट्रॉयड इजीली, ठीक है। इट शुड बी पॉसिबल टू यूज द मनी और करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स रिपीटेडली ओवर द ईयर्स, तो बहुत सालों तक वो चल पाए, ठीक है, बहुत सालों तक रिपीटेडली जो पैसा मार्केट में है वो चल पाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आज ही यूज किया आज ही खत्म करना है। कॉग्निजिबिलिटी, व्हाट इज कॉग्निजिबिलिटी, मनी शुड बी इजीली रिकॉग्नाइजेबल एंड डिस्टिंग्विशेबल, नकली और असली की पहचान आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भाई साहब वो बच्चों का देखा है आपने, 500 रुपए का जो नोट आता है वो आप देखकर ही बता रहे हैं नकली है भाई साहब, ठीक है, बाकी तो आपको देखना पड़ेगा बहुत बारीकी से, ठीक है, नोट की जांच करनी पड़ेगी, पर वो देखकर ही बता सकते हो ये नकली है, ठीक है। तो इवन एक मतलब आपकी उम्र का इंसान भी आराम से बता सकता है, आपसे कम उम्र का इंसान भी शायद वो आराम से बता देगा ये खिलौने वाला नोट है, ठीक है, क्योंकि उतना समझ हमको आ गया है, तो ये इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, जो डिफरेंसेस हैं वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काउंटरफीट नोट्स या जाली नोट मार्केट में नहीं है, शायद है, ठीक है, बड़ी मात्रा में भी है, लेकिन उसको जांच करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। लेकिन कॉमन चीज़ें तो कोई भी एक्सपर्ट मतलब आराम से बता सकता है, कोई आपका खिलौने वाला नोट और आपका जो एक्चुअल नोट है, देयर विल बी अ डिफरेंस एंड एनीबॉडी कैन पॉइंट इट आउट, एनीबॉडी कैन पॉइंट इट आउट। मनी शुड बी इजीली रिकॉग्नाइजेबल, आराम से आप उसको रिकॉग्नाइज कर सके एंड डिस्टिंग्विशेबल एज वेल। देखो जैसे 10 रुपए का कलरिंग और डिजाइन 20 रुपए के कलरिंग और डिजाइन से अलग है, 50 रुपए का भाई साहब 2000 से अलग है। कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, मैंने कभी किसी को 20 रुपए दिया, आपको 10 दिया, क्या नहीं, मतलब हमने डिनोमिनेशन पढ़ा नहीं, देखा नहीं, लेकिन उसके कलर को देखकर ये बता देंगे ये 10 रुपए का नोट है ना। एक्चुअली में देखते हो कि आप अच्छा यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 रुपए का नोट है, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। आप इसको देख कर ही बता देते हो, इसको अगर नहीं भी देखोगे तो भी बता दोगे 2000 का नोट है, अगर इसको आपने नहीं भी देखा तो भी बता दोगे आप 100 रुपए का नोट है। सो दैट डिजाइन इटसेल्फ इज वेरी मच इजी फॉर अस टू प्रोटेक्ट, तो इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, आप इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एक्चुअली डिनोमिनेशन को मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ के तब आप बोलोगे कि हाँ 100 रुपए मैंने किसी को दिए या लिए, ऐसा नहीं, ठीक है। एंड डिस्टिंग्विशेबल, एक दूसरे से ये आराम से डिस्टिंग्विशेबल, 500 का जो नोट है वो 100 रुपए के नोट से आराम से इजीली डिस्टिंग्विशेबल, एक दूसरे में फर्क है, अच्छा खासा फर्क है, ठीक है। Notes and coins of different denominations should be of different sizes or different colors so that they can be easily differentiated. तो अलग अलग नोट्स कॉइन्स जो हैं आपके वो अलग अलग होने चाहिए ताकि हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकें। पोर्टेबिलिटी, मनी शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफिकल्टी, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस, मतलब भाई साहब आराम से आप एक जगह से दूसरे जगह तक मनी को कैरी कर सकें। पोर्टेबिलिटी, मनी शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट किसी डिफिकल्टी के, ठीक है, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस, ना ही कोई डिफिकल्टी हो, ना ही कोई एक्सपेंस और ना ही कोई इनकन्वीनियंस हो, इजीली कैरी किया जा सकता है। पोर्टेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। एग्जांपल, इट इज पॉसिबल टू कैरी करेंसी नोट्स इजीली ड्यू टू देयर पोर्टेबल नेचर, ये पोर्टेबल नेचर, ठीक है, मतलब आप आराम से इसको कैरी, अगर भाई साहब 500 रुपए का नोट इतना बड़ा सा हो, आप उसको क्या कैरी कर रहे हो, ठीक है, तो इजीली कैरीबल होना चाहिए, आपने एक पर्स में पूछ दिया आप उसको आराम से लेकर जा सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इजीली पोर्टेबल। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब money of a particular denomination must be homogeneous or identical in all its features। तो भाई साहब ये 500 के रुपए हैं,
ये 500 का कुछ और डिजाइन, दूसरे वाले 500 का कुछ और डिजाइन, तीसरे वाले 500 का कुछ और डिजाइन, ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आप एक 500 रुपए के एक नोट को देखेंगे, दूसरे नोट को देखेंगे, दे विल हैव अ सिमिलर डिजाइन, टेक्सचर, क्वालिटी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये होते हैं होमोजेनिटी, इट इज कॉल्ड होमोजेनिटी। 10 रुपए का जो नोट है उसमें भी होमोजेनिटी रहेगी, 1 रुपए का जो कॉइन है उसमें भी होमोजेनिटी रहेगी, दिस इज कॉल्ड होमोजेनिटी, ठीक है। सो होमोजेनियस आइडेंटिकल इन इट्स ऑल इट्स फीचर्स, इट शुड हैव सेम साइज, कलर, शेप एंड थिकनेस, तो ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए। ऑल नोट्स ऑफ ₹2000 लुक एंड फील द सेम। फंक्शंस ऑफ मनी, पहला प्राइमरी फंक्शन भाई साहब क्या है आपका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट डेफिनेटली सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसको आप किससे एक्सचेंज करते हैं, बाय द मनी दैट यू हैव, ठीक है। सो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज, गुड्स मतलब आप जो सामान खरीद के लाते हैं, और सर्विसेज मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलॉटमेंट सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी कर रहे हैं, ठीक है। इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम को रिप्लेस करता हुआ मनी आया हुआ है, ठीक है। And it is the most prominent medium of exchange in today's life. It means any commodity can be purchased or sold for money. ठीक है? It is the most important function of money, medium of exchange. और यही एक फीचर है जिसने बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेज को कवर किया है, ठीक है। बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेज को मनी ने कवर किया है। The entire process of buying and selling has become simple and quick due to use of money, ठीक है। It has overcome all the limitations of barter system. Barter system के सारे limitations को इसने cover किया है। Measure or value or unit of account. Money makes it possible to measure the value of any commodity or service. कोई भी commodity और service को हम easily measure कर सकते हैं। Price reflects value of a money or a service in monetary terms. तो price पैसा क्या आता है? Reflects the value of a commodity. किसी commodity की price in terms of money ही रहेगी ऐसा, है ना। किसी कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ मनी, ठीक है। ओके, एग्जांपल, इफ वन वड़ा पाव इज सोल्ड एट ₹10, इट मींस द वैल्यू ऑफ वड़ा पाव इन मॉनेटरी टर्म्स इज हाउ मच, ₹10। मनी आल्सो फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। फॉर एग्जांपल, इफ वन वड़ा पाव इज सोल्ड फॉर ₹10 and if one burger costs ₹50, we can say that the price of one burger is 5 times the price of one vada pav. तो हम यहाँ पे भाई साहब इसको बोल सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा है और कितने गुना ज़्यादा है। भाई साहब हम अगर बोलेंगे भाई एक बर्गर का जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है, 5 गुना ज़्यादा है, ऐसे हम कमोडिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने देखा रहेगा जब अमेजन या फ्लिपकार्ट पे आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आप जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे उसी चीज़ का कंपैरेटिव एक और कुछ रहेगा, उसका प्राइस आपको दिखेगा। ये क्यों है? वाई इज इट देयर? बिकॉज सो दैट यू कैन मेक रैशनल चॉइसेस, ठीक है। ये अमेजन या फ्लिपकार्ट आपको ये चॉइस दे रहा है, अगर ये आपको भारी गिर रहा है तो आप इस ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना, ठीक है। मनी मेक्स बोरोइंग एंड लेंडिंग इजी। Money has overcome the difficulty that is relating to deferred payment experienced under the barter system. अगर barter system है, आपने एक जूता एक बकरी से एक्सचेंज किया हुआ, क्या इस बकरी को आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं? नहीं, ठीक है। मतलब क्या आला आज टंगे लेकर जाओ, कल पूंछ लेकर जाना, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी डन, बट कैन यू, मतलब समझ लो कोई 10,000 की चीज़ है तो इस महीने तुम 2,000 ले लो, ऐसे करते करते मैं 5 महीने में तुम्हारा चुकता कर दूंगा, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। ओके, सो मनी मेक्स बोरोइंग एंड लेंडिंग इजी। मनी हैज ओवरकम द डिफिकल्टी रिलेटिंग टू डिफर्ड पेमेंट एक्सपीरियंस अंडर द बार्टर सिस्टम। एग्जांपल, इन बार्टर सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट टू मेक रीपेमेंट ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्टेन कमोडिटीज। पेरिशेबल नेचर मतलब सड़ जाएंगी, वैसा कोई फिश है, फिश तो आपको पूरा ही देना पड़ेगा मुझे, कोई क्रैब ना कर लाया मैं वो आज ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। So certain commodities and difficulties associated with storing bulky goods. Bulky goods को store करना एक अलग difficulty है। With the advent of money, people can easily borrow money and repay it at a later date. और इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? Deferred payments, ठीक है। Repaying at a later date is called deferred payment. Store of value. Money acts as a store of value. When money is received, it is not necessary to use it immediately. ताबड़तोड़ यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है, आप आराम से उसको स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे आपने कोई चीज़ बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज की, आप कोई वैसा फिश लेकर आए बार्टर सिस्टम में, आपको ताबड़तोड़ यूज करना पड़ेगा उसको।
आपको नहीं चाहिए था फिश, लेकिन अगले वाले के पास फिश ही था देने के लिए, ठीक है, आपको उसको ताबड़तोड़ यूज करना पड़ेगा, वो पेरिशेबल है। लेकिन अगर आपने कुछ बेचा है और उसकी जगह पे आपको फिश नहीं मिला, आपको पैसे मिले, तो उसको आप बहुत दिनों तक यूज स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, सो मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हेन मनी इज रिसीव्ड, it is not necessary to use it immediately. Money can be saved for future use. Since money has purchasing power, it can satisfy present wants as well as make provision for satisfaction of future wants through savings. ठीक है, तो अभी present wants plus future wants को ये savings के हिसाब से store करके रखें। According to Lord J.M. Keynes, money is a link between the present and the future. तो present और future के बीच में एक बहुत बड़ा link है money।